Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, I was explaining you about equivalent fractions, right? So students, equivalent fractions को कैसे लिखा जाता है, how to write the next 4 equivalent fractions, I have already explained you. But in today's video also I am going to explain you that concept once again so that you can recall that, okay? So equivalent fractions, two or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fractions. यानी दो या दो से ज़्यादा ऐसे fractions जो कि आपके उसको जब आप reduce करेंगे तो same value हो. Once you are going to reduce it, the value is same. Now how do we get the equivalent fractions? हमें equivalent fractions कैसे मिलते हैं? So we multiply or divide the numerator and the denominator by the same value. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू से, either you will multiply or you will divide. So this is how you are going to obtain the equivalent fractions. So I have given you one example also. So I will explain it once again. 3 upon 7. Now you have to write the next 3 equivalent fractions of 3 upon 7. तो आप उसको कैसे लिखेंगे? So 3 upon 7 आप क्या करेंगे? Firstly multiply the numerator and the denominator by 2. सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, so it is 6 upon 14. Why I am not dividing? मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड क्यों नहीं किया? Because we all know that 3 and 7 are co-prime numbers. इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और आपको सेम नंबर से डिवाइड करना होगा. तो वी कैनॉट डिवाइड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज इट कैनॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड. जब आपका रिड्यूस हो सकता है तब आप डिवाइड करते हैं. जब ये आपका रिड्यूस नहीं हो सकता देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग ओनली. डिवाइड वाला केस आपका तब आता है जब आपको कंपेयर करना होता है. इन दैट केसेस यू आर गोइंग टू डू दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी. नाउ आई हैव मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. Now again for the next equivalent fraction, अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को I am going to multiply it with 9. So 3 3s are 9, sorry, multiply it with 3 and 7 3s are 21. Now the next equivalent fraction 3 upon 7 multiplied and न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. So 12 upon 7 4s are 28. So 12 upon 28. Now I will tell you how these fractions are equivalent fractions. कैसे ये equivalent fractions हैं. Okay? So let's try to reduce these numbers. आप सभी को पता है 2 3s are 6, 2 7s are 14. So we have got the same number. Coming to this one, 3 3s are 9, 3 7s are 21. 4 3s are 12, 4 7s are 28. So these fractions are equivalent fractions because once we are reducing them we are getting the same value. वैल्यू पे सेम पार्ट ऑफ होल नंबर आपको रिसीव हो रहा है. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्दर अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दैट हाउ डू यू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 7 विद न्यूमरेटर 18. ठीक है. आपको बोला गया है 3 अपॉन 7 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है एंड द न्यूमरेटर शुड बी 18. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट, आप कैसे लिखेंगे? तो जस्ट राइट 3 अपॉन 7. अब आपको न्यूमरेटर बता दिया 18 एंड यू डोंट नो व्हाट इज द डिनोमिनेटर. अब आपको डिनोमिनेटर नहीं पता, तो नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 के टेबल में 18 आता है. 3 6s are, you are multiplying it with 6. Now what are equivalent fractions? To obtain equivalent fractions we multiply the numerator and the denominator by the same number, either multiply or divide. So here क्या किया गया? मल्टीप्लाई किया गया. 3 multiplied by 6 is equals to 18. तो अब आपके डिनोमिनेटर में भी वही सेम चीज मल्टीप्लाई होगी. 7 will be multiplied with 6. So 7 6s are 42. So the equivalent fraction will be 18 upon 42. Taking one more example. कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स लूँगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए.
ओके, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8 विद डिनोमिनेटर 48, विद डिनोमिनेटर 48। तो आप कैसे लिखेंगे? ओके, सो इन दैट केस आप लिखिए 5/8 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर आपको 48 दिया है एंड यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर। तो नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी 8 के टेबल में आपका 48 कब आता है? व्हेन डज इट कम्स इन द टेबल ऑफ 8? 8 6 जा 48। तो जो चीज़ आपकी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुई है द सेम थिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ऑल्सो। सो 5 6 जा 30, राइट? सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन। अब क्या होता है, कुछ इसके उल्टे भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो डिवाइड वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको यू हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर। सो आपको दिया जाए क्वेश्चन, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/63 विद न्यूमरेटर 4। आपको क्या न्यूमरेटर दे दिया गया? 4 न्यूमरेटर दे दिया गया। सो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म? तो अब आपको पता है यहाँ पे 36/63 इज इक्वल्स टू 4 यू डोंट नो व्हाट इज द डिनोमिनेटर। अब आप ये बताइए, जो प्रोसेस आपने वहाँ से किया था द सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम हेयर ऑल्सो। या तो आप 36 को 4 से डिवाइड करिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 9। तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। तो अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू आर गोइंग टू ऑब्टेन 63? तो ये अगर आपको पता करना है तो आप 63 को डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 इज दैट टेबल, बिकॉज वी ऑल नो दैट 7 9 जा 63। सो दिस इज हाउ यू डू द रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे क्या किया गया है, 36 इज डिवाइडेड बाय 9 एंड 63 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 9, देन 4/7 इज ऑब्टेन्ड। जब आप 36 और 63 को 9 से डिवाइड करेंगे देन ओनली यू विल ऑब्टेन 4/7। 36 के टेबल में 9 के टेबल में 36 कब आता है? 4 टाइम्स। 9 के टेबल में 63 कब आता है? 7 टाइम्स। सो दिस इज हाउ दे हैव डन। तो ये आपका एक डिविजन का एग्जाम्पल हो गया। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल फॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ डिविजन, जिसमें डिवाइड किया गया हो। तो राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20/36 विद डिनोमिनेटर 9। आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 20/36 का विद डिनोमिनेटर 9। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, 9 के टेबल में 36 कब आता है? या तो आप 36 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आया होगा वही मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब आप 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो यू आर ऑब्टेनिंग 4। तो 9 4 आर 36, वी नो दैट। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा? विच टेबल इज दैट? आप सभी को पता है 5 4 आर 20। अगर आपको तभी भी ना याद आए तो आप क्या करें, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 5 will be the numerator. So I hope it is clear now, students. I hope you must have understood about the concept of equivalent fractions. Now I am going to explain you an interesting fact to test whether two given fractions are equivalent or not. जो आपको दो fractions दिए हैं वो equivalent हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको? Let's begin. अब इसी एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 20/36 इज इक्वल्स टू 5/9। आर दे इक्विवेलेंट? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये इक्विवेलेंट हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS, देन ओनली दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी 9 को 20 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 180, राइट? 20 मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई। 20 multiplied by 9 is 180. Now 36 multiplied by 5 is 5 6 is 30, 5 3 is 15, 15 plus 3. So both are equivalent fractions. क्या करना है आपको? You just have to cross multiply in order to check whether the given two fractions are equivalent fractions or not. Okay? इसके बेस पे मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगी विच यू हैव टू डू इन द मैथ्स क्लास वर्क कॉपी. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी गिवन टू यू.
So students, 5/8 and 20/32, you have to show that these two fractions are equivalent fractions or not. So what you are going to do, just cross multiply करिए आप. Now 5 multiplied by 32, तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 16, correct? 160. Now 8 multiplied by 20, that is also 160. That means both the fractions are equivalent fractions. Now what is the simplest form of a fraction? किसी भी fraction का simplest form क्या होता है? What is the simplest form of a fraction? Now before beginning to this, I just want to know the definition of co-primes. जिसको याद है, please comment down the definition of co-primes in the comment section. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म वंस द HCF ऑफ द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो HCF है वो अगर आपका 1 आए तो दैट मीन्स दैट फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है they should be a pair of co-prime, यानी कि उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. अब आपको जो फ्रैक्शंस दिए जाते हैं, इफ़ दे आर नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आप क्या करते हैं? आप उनको रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर इज गिवन टू यू 25/35 and you have to express this fraction into the simplest form. Then how will you express this fraction into the simplest form? So the best thing which you can do is just take the HCF of the numerator and denominator. आप 25 और 35 का पहले HCF निकालिए. 25 1s are 25, यहाँ पे आपका 0, then 10 2s are 20, again 5 remainder, 5 2s are 10. I usually prefer the division method to find out the HCF. आप factors लिख के भी निकाल सकते हैं, but it takes a lot of time, so that is why I prefer this method. तो हमारा HCF क्या आया 25 and 35 का? The HCF of 25 and 35 is 5. यानी कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है. तो किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए what you have to do? You have to take the HCF of the numerator and the denominator, and then what you have to do, divide the numerator and the denominator by that HCF. तो 25 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, एंड 35 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. Now 5 and 7 is a pair of co-prime. Why it is a pair of co-prime? Because it cannot be reduced further. It do not have any other common factor apart from 1. Taking some more examples of simplest form. 36/84. Now 36/84, we have to express this into its simplest form. तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF लेंगे. करेक्ट? सो 36 1s are 36, 36 2s are 2 6s are 12, 2 3s are 6 7. तो 72 आया आपका. Now 12. We all know that 12 3s are 36. So what is the HCF of 36 and 84? The highest common factor of 36 and 84 is 12. Now what is the next step? The next step is to divide the numerator and the denominator by its HCF. उसके HCF से आप divide कर दीजिए. तो जब आप 36 को 12 से divide करेंगे you will obtain 3, and जब आप 84 से divide करेंगे you will obtain 7. So 3/7 is the simplest form for 36/84. So I hope you must have understood about the simplest form also. So students, if you want to further understand about this, I am going to attach the link in the description box of a video that is of class 5. उसमें मैंने equivalent fractions के बारे में काफ़ी अच्छे से explain किया है. So you can watch that video also. I am sending it to the group also, so you can watch that video
एंड दैट इज़ नॉट एन ओल्ड वीडियो. आपको मैंने पहले भी एक वीडियो भेजा था तो आप लोगों ने कहा कि दैट इज़ ऑफ क्लास 5. So if the chapter name is same, concept is also same, then you can watch that video. That will be helpful and beneficial for you. So thank you students. अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा. Have a nice day. Subscribe the channel and press the bell icon.